Hello everyone. Today we are going to discuss about eukaryotic cell. In the previous video we have already discussed about prokaryotic cell. So let us start eukaryotic cell. Now, then as the name suggests, eukaryotic cell. So it is also made up of two terms, eu and the karyotic. Eu means true and the karyon word or the karyotic word is from the karyon, which means nucleus. So all the cells which contain a true nucleus is called a eukaryotic cell. मतलब वो सारे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. इफ यू रिमेंबर, इन द प्रोकैरियोटिक सेल वी हैव सीन दे डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस बट दे हैव अ न्यूक्लियोइड, means a nucleus like structure. Nucleoid means like structure, but here in eukaryotic cell a true nucleus is present. तो true nucleus क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस का कंटेंट है, लाइक योर क्रोमेटिन फाइबर, योर न्यूक्लियोलस, योर न्यूक्लियोप्लाज्म, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड inside a layer which is known as the nuclear membrane. So the presence of nuclear membrane makes the nucleus special and we call it true nucleus. Now let us discuss the characteristic feature of a eukaryotic cell. So while we are discussing the characteristic feature, we will keep two things in our mind. First thing is that in all the eukaryotic cell, they contain a well-defined nucleus. And the second thing is that they have a numerous membrane-bound organelles. Numerous, lot of. We will discuss this in detail. And there are only two organelles which are non-membranous, जिनके जो कि membrane bound नहीं होती हैं. They are ribosomes and centrosomes. Ribosome is present in both plant and animal cell, whereas centrosome is only present in animal. जो हमारा centrosome है वो सिर्फ और सिर्फ हमें animal cell में मिलता है और ये दोनों ही non-membranous ऑर्गेनेलीज हैं. वी कॉल देम ऑर्गेनेलीज क्योंकि बेटा देखिए, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन काम करते हैं, वैसे सेल के अंदर जो काम करते हैं उनको हम ऑर्गन नहीं बोल करके ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर. Now let us see in which kind of organism this is present. So we have already seen in prokaryotic cell that prokaryotic cell जो है वो हमारा lower organism में पाया जाता है. इसका मतलब कि higher organism में we will have organism which are made up of or which compose eukaryotic cell. तो जो हमारा 5 kingdom classification है, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia, इसमें kingdom Monera को छोड़ के जो बाकी हमारे 4 kingdom है, that is Protista, Fungi, Plantae and Animalia, they all are composed of your eukaryotic cells. Now let us discuss a detailed structure of a eukaryotic cell. तो बेटा डिटेल स्ट्रक्चर से पहले जो यूकैरियोटिक सेल है उसको हम 5 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे. जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह से हमने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को 5 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल एनवेलप. सेल एनवेलप में वी हैव 3 थिंग्स. वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज द सेल वॉल, third is the cell coat. Cell membrane we all know that it is also known as plasma membrane. ये जो है सेल को आउटर स्पेस से सेपरेट कर देता है. इट एक्ट्स लाइक अ LOC. मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आपका सेलुलर स्पेस, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. देन कम्स द सेल वॉल. जो सेल वॉल है इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल. थर्ड इज द सेल कोट. सेल कोट जो है बेटा वो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड इट इज अ जिलेटिनियस लेयर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन. देन द सेकेंड इज योर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है उसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट है न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप में आपका आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों आता है. आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज ऑफ 2 लेयर, आउटर एंड इनर. टुगेदर वी कॉल इट न्यूक्लियर एनवेलप. तो जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें बीच बीच में छोटा छोटा स्पेस है एंड दैट स्पेस इज फॉर द कंडक्शन ऑफ और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस to the cytoplasm and from the cytoplasm to the inside the nucleus, and that spore, that space, we call them nuclear pore. Then inside the nucleus there is a dense structure which we call as nucleolus,
And nucleus is very important because it helps in the production or the synthesis of ribosome. Then comes the chromosome or the chromatin material or the chromatin fiber, which is made up of DNA and histone protein. Remember this histone protein. तो जो आपका क्रोमोसोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी मटीरियल. जो हेरिडिटरी ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम बिकॉज दे कंटेन DNA. Then comes your nucleoplasm. Nucleoplasm is the site of DNA and RNA synthesis. यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट भी सिंथेसिस होता है, प्लस ये जो न्यूक्लियर के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको अपने स्पेस में रखता है. एंड next component is cytoplasmic component. In the cytoplasmic component, we will discuss mitochondria, plastids, ribosomes, microbodies and chloroplasts. Mitochondria is present in both plant and animal cell, and they are also known as the powerhouse of the cell because they are the site of respiration. Next is the ribosome. They are also known as the protein factory and they are the non-membranous organelles. Next is the microbodies. Microbodies में बेटा आपका 4 तरह के माइक्रोबॉडीज होते हैं. पेरोक्सीजोम्स जो कि ज़्यादातर दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल में पाए जाते हैं. मोस्टली हम पेरोक्सीजोम्स ही मेंशन करते हैं. इसके अलावा भी 3 तरह के माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट हैं जिनका नाम है ग्लाइकोक्सीजोम्स, ग्लाइकोजोम्स एंड हाइड्रोजिनोजोम्स. देन इज योर प्लास्टिड्स. Plastids and chloroplast both are exclusively found in plant cell. तो जो आपका plastids है they are involved in manufacturing and storing of biochemical compounds and especially pigments. तो जो आप plant में color देखते हैं, color of the flower, fruit and leaves, it is all just because of the plastids. Next is the chloroplast. तो आपका जो chloroplast है, this is the site of photosynthesis and it is very important because without photosynthesis no food will be available. और जो बेटा आपका जो microbodies हैं, these are basically prevalent in your liver and kidney cell. मतलब वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि जो आपके microbodies होते हैं they contain lots and lots of enzyme that are involved in biochemical reaction within the cell and they also helps in the detoxification in plant cells. Now, the next component of a eukaryotic cell is endomembrane system. So, what is this endomembrane system? बेटा endomembrane system में membrane और organelles दोनों साथ में काम करते हैं and they divide the cell into functional and structural compartment and their main function is to modify, package and transport lipid and protein. So let us see what are these, what are the organelles and membrane which are present in endomembrane system. First is the endoplasmic reticulum, both rough endoplasmic reticulum as well as smooth endoplasmic reticulum. तो जो हमारा rough endoplasmic reticulum होता है उसके surface पे, outer surface पे ribosome unit attach होते हैं, इसलिए हम उसको rough endoplasmic reticulum बोलते हैं because कि उसके surface पे ribosome present है तो वो ribosome protein synthesis का काम करता है as well as it also package the protein और उसको package करके उसको Golgi body और wherever it is needed it used to transport it. और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ अ साइट ऑफ सिंथेसिस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन, सेल डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है हमारा गोल्गी एपरेटस. जो हमारा गोल्गी एपरेटस है बेटा दे यूज टू प्रोसेस द प्रोटीन जो कि प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है उसको प्रोसेस करता है. कैसे प्रोसेस करेगा? उसमें जैसे लिपिड ग्रुप ऐड कर दिया लाइपोप्रोटीन, फॉस्फो ग्रुप ऐड कर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन, उसकी प्रोसेसिंग में काम करता है. और जैसे ही वो प्रोसेस कर लेता है उस प्रोटीन को उसको पैक कर देता है. उसको पैक किस में करता है? वेसिकल्स में पैक कर देता है. आपने देखा होगा गोल्जी वेसिकल्स. तो जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर प्रोसेस प्रोटीन की पैकेजिंग हो जाती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. अगर वो सेल के अंदर है तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सेल के बाहर अगर भेजना है तो सेल के बाहर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स द लाइसोसोम. तो जो बेटे जो लाइसोसोम्स है दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन एनिमल सेल
और जो लाइसोसोम्स है दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द, दे आर मेड बाय द गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का सेकंड काम है प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम। और जो लाइसोसोम्स है इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी सेल ऑर्गेनेली वाले पोर्शन में करेंगे। उसके बाद है आपका वैक्यूल्स। तो जो बड़ा वैक्यूल्स है दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली। एक सेल का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है वो वैक्यूल होता है। और प्लांट सेल में ये एक ही प्रेजेंट होता है बट इट इज़ वेरी बिग। एंड इन एनिमल सेल इट में प्रेजेंट इन न्यूमरस, मतलब न्यूमरस मतलब एक दो से ज़्यादा, टोटली डिपेंड्स कि सेल की क्या ज़रूरत है, बट द साइज विल बी स्मॉल। इन अ प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन अ वन बिग साइज एंड इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल स्मॉल साइज। नंबर्स डिपेंड अपॉन सेल टू सेल। उसके बाद आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज ऑल्सो इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आपका सेल एनवलप plus endomembrane system. Next is your nuclear envelope. It is a component of nucleus plus endomembrane system. And the last component of the eukaryotic cell is your साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम है स्केलेटन, स्केलेटन का क्या काम होता है? बॉडी को शेप देना। वैसे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का काम होता है सेल को शेप देना, उसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन रखना। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स है बेटा दिस आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर आल्सो थिन स्ट्रक्चर एंड दिस आर प्रेजेंट, दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, दे आर थिन ट्यूब्यूल, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो दीज थ्री आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन द एनिमल सेल और इनका काम है सेल को स्ट्रक्चर देना। उसके बाद एक और कंपोनेंट है, एक और पार्ट है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का, वो है सीलिया एंड फ्लैजिलम, बट दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो सारे सेल में प्रेजेंट नहीं होता। आपने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा है, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम लोग साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सरफेस पे ग्रो करते हैं, देयर रूट इज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। So here we have discussed all the component of the eukaryotic cell. Now we will draw a typical eukaryotic cell. So before we draw a typical eukaryotic cell, let us discuss the shape of the eukaryotic cell. तो जो बेटा हमारा eukaryotic cell होता है इसका कुछ भी हम shape draw कर सकते हैं, spherical, circular, cuboidal, cylindrical, rectangular, lenticular, even polygonal. Totally depends upon you. Now the two things while drawing the shape you used to keep in your mind is that there are some eukaryotic cell which are irregular in shape. उनका कोई shape नहीं है, कैसे भी change हो जाता है. And some are capable of changing shape. मतलब some are irregular in shape and some are capable of changing their shape. Now let's come draw the diagram. So first of all we will draw the cell membrane. So here I am drawing this. This is your cell membrane. बेटा हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट्स ड्रॉ करेंगे जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है. वी आर ओनली गोइंग टू ड्रॉ दी common organelles or common things which are present in both plant and animal cell. Then in the next video I will draw plant and animal cell. So this is the shape I am drawing for the eukaryotic cell and this is your plasma membrane. और सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है उसका न्यूक्लियस. तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. दिस इज योर न्यूक्लियोलस. Then we have thread-like structure. That is your chromosome, chromatin material बोलिए या chromatin fiber. और उसके अंदर बेटा आपका fluid-like structure, fluid is present, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. तो जो आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बेटा वो डबल लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. तो ये हम आपका डबल लेयर ड्रॉ कर देते हैं. और इसके बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. डार्क कर देते हैं.
आपका जो ये न्यूक्लियर पोर है ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से इनसाइड द न्यूक्लियस. सो वी हैव ड्रॉन द न्यूक्लियस. तो हम जरा फर्स्ट कंपोनेंट में आपका न्यूक्लियस को लेबल भी कर लेते हैं. तो दिस इज योर न्यूक्लियर एनवेलप. ये आपका न्यूक्लियोलस. दिस इज योर क्रोमोसोम, chromatin material. Then this is your nuclear core. And this fluid or semi-fluid is known as your nucleoplasm. और ये आपका पूरा हो गया पहला कंपोनेंट, दैट इज योर न्यूक्लियस. इसके बाद हम बनाएंगे आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हम बनाएंगे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो बेटा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से शुरू हो जाता है. मतलब आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन है उससे कलेक्टिवली वो स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना. और आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद है आपका गोल्जी बॉडी. और ये जो गोल गोल है ये आपके हो जाएंगे गोल्जी वेसिकल्स. इसके बाद हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है वैक्यूल. तो बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है वैक्यूल आर दी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली. उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है. तो चलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की लेबलिंग करते हैं. तो ये जो आपका जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है जिसके सरफेस पे ये आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये देखिए आउटर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है इसलिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन इज योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और ये आपका हो जाएगा Golgi vesicles. And this is your vacuoles. Okay, it is UONES vacuole. इसके अलावा आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम्स भी आते हैं, लेकिन लाइसोसोम हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि लाइसोसोम जो है बेटा दीज आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन योर एनिमल सेल. उसके अलावा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी पार्ट है. तो ये आपको होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ थर्ड इज द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट या साइटोप्लाज्मिक सिस्टम. तो साइटोप्लाज्मिक सिस्टम में आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया.
आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद है आपका माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज में हम बनाते हैं पेरोक्सीजोम्स, ये दो हमारे पेरोक्सीजोम्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट में आ जाएगा फ्री राइबोसोम्स। इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। ये आपको हो गया माइक्रोबॉडीज। Microbodies, this is your mitochondria. और ये आपके होंगे फ्री राइबोसोम्स। और ये तीनों मिलके आपका बनाते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्मिक लिख देते हैं कंपोनेंट। हमारा 1 2 3 कंपोनेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 2 इज लेफ्ट। सो द नेक्स्ट इज द साइटोस्केलेटन सिस्टम। साइटोस्केलेटन सिस्टम या साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, इसमें आपको बनाएंगे सबसे पहले हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर माइक्रोफिलामेंट। और मैंने बताया कि जो माइक्रोफिलामेंट है बेटा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास मिलता है। तो ये आपका हो गया माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद बीच बीच में हम बना देंगे ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, और ये आपका हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट, देन दिस इज योर माइक्रोट्यूब्यूल, and this is your intermediate filament। तो ये आपका मिलके बनाता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइटोस्केलेटन। इसको हमने अंडरलाइन, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जो लास्ट है वो है आपका सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका हो जाएगा सेल एनवेलप। इसको अंडरलाइन करके लिख देते हैं सेल क्योंकि सेल वॉल और जो सेल कोट होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है और सेल कोट जो है एनिमल सेल में, तो वो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो यू कैन सी दिस इज योर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। और इन सब के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस बहुत जगह लिखा रहता है, फ्लूइड फेज, लिक्विड फेज, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मेंशन कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म। बेटा देखिए साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी प्रेजेंट है दैट इज योर साइटोप्लाज्म। मतलब कि आपका लिक्विड फेज प्लस आपका जो जितना भी ऑर्गेनेली है दोनों को मिलाकर के होता है साइटोप्लाज्म। जब हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे, सारे ऑर्गेनेली और सबको हटा दीजिए, सिर्फ से एक सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड फेज है या जो लिक्विड हम बनाते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस जो बनाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोल करके बोलेंगे साइटोसोल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसको बोलते हैं हम साइटोसोल। इट इज द लिक्विड फेज। क्या है ये? लिक्विड फेज ऑफ अ सेल, साइटोप्लाज्म। आपका जो अंदर जो भी लिक्विड फेज है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म सबको समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द सेल ऑर्गेनेली
plus the liquid phase is called as cytoplasm. If we talk about only of the liquid phase, then it is your cytosol. And the last term that we need to discuss is the protoplasm. Protoplasm क्या होता है? Protoplasm का मतलब है cytoplasm plus nucleus. जब दोनों की हम बात करेंगे एक साथ, तब हम उसको बोलेंगे आपका प्रोटोप्लाज्म, और इसको हम लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं. लिविंग कंपोनेंट क्यों बोल रहे बेटा? क्योंकि बेटा सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, सेल वॉल इज द डेड पार्ट, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारा लिविंग पार्ट है, एंड ऑल आर वर्किंग, एक लिविंग यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लिविंग यूनिट बोलते हैं. सो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल. तो जो बेटा प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें जो आपका जो साइटोप्लाज्म है, आपका जो साइटोप्लाज्म है, उसका दो फेस होता है, एक सॉल फेस होता है, एक जेल फेस होता है. सॉल फेस का मतलब होता है फर्म, मतलब जो हम सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनेल लोकेटेड है, वहाँ का जो आपका जो साइटोसोल होता है वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, फर्म होता है. क्यों? ताकि आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं उसको अपनी जगह पे होल्ड करके रख सके. और जैसे जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं, एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ जो आते हैं, तो वो जो होता है थोड़ा लिक्विड सॉफ्ट जेल की तरह होता है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंडक्शन हो सके, ठीक है, मूवमेंट हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पे हमने कॉमन स्ट्रक्चर्स, कॉमन ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. अपकमिंग वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेली है जो कि एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और कौन से सेल ऑर्गेनेली है जो कि एक्सक्लूसिवली एनिमल सेल में पाए जाते हैं. सो आई होप this video will help you to understand eukaryotic cell, and if you find any problem you can comment me. I will try to help your problem, and thank you very much for your love and support.